Okay, so hi everyone. Welcome back to the channel. This is Neha, aka Virago. So, first of all, thank you so much for all the love that you people gave me for my last video. I am nothing less but grateful. Highly grateful. I genuinely have huge gratitudes because I genuinely never thought that, okay, people can really like me or maybe the way I speak. So, once again, thank you so much. I bow down for all of you. Thank you so much. Okay, so we will straight up jump to the topic for today, which I actually got a lot of feedback that my students, I teach a lot of students, so they wanted me to cover some specific topics, and I made a list of it. So the first one, very first one that we are addressing today is going to be stage fear. Okay, so now I feel that it is going to be a funny, not exactly funny, but it is going to be a good one. Why? Because um, see, whenever you do something in your life, I mean, you face a challenge and then you somehow overcome it, and now comes the best part, that now you have to share your experience with somebody. You have to teach somebody कि मैंने ये कैसे करा. This is the best part out of that, experience, that learning. Because मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि आपने एक चैलेंज फेस किया, फील किया, आपने उसको ओवरकम किया और आप जीत के बाहर निकले, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है. बट अनलेस आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो लोगों में, वो सिर्फ आप तक ही है. सो आई ऑलवेज हैव अ फीलिंग दैट इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग, share it with people. As much as you share, you double it up. This is what I feel. So as I told in my last video, I went to Radio Mirchi, I got rejected, I practiced very hard for 6 months continuously. डेली का काम होता था, मिरर के सामने खड़े होना है, प्रैक्टिस करना है, मिरर के सामने खड़े होना है, प्रैक्टिस करना है. एंड दिस व्हाट यू सी टुडे डेफिनेटली इज नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ व्हाट आई हैव बीन एट दोस टाइम्स. सो उस टाइम पे डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आज फिर भी हमारे पास वी आर वेरी अपग्रेडेड, वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव दिस यूट्यूब एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गेस मेरे पास में बस टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर था, जिसकी इंग्लिश समझने में मुझे एक्सट्रीम लेवल का चैलेंज फील होता था. एंड जो दूसरी चीज मेरे पास थी, दैट वाज गूगल. सो आई यूज्ड टू गो गूगल थिंग्स अप, एंड बार बार मैं प्रोनाउंसिएशन सुनती थी. आई टोल्ड दिस टू वन ऑफ माय स्टूडेंट रिसेंटली कि प्रोनाउंसिएशन कैसे सीख सकते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट नो कि मैम पढ़ तो मैं लूंगा जो भी स्पेलिंग लिखी है, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ. So now whether it is going to be pronunciation or pronunciation, but the exact sound is pronunciation. So now how to learn this in the first place? Let's say you don't have a coach, you don't have anything. Imagine the times जब YouTube भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, तो तब आप कैसे करोगे ये चीज? So I used to go on Google, type the word as it is. Actually you all can do this. अगर आप लोग को कभी कोई word बोलने में चैलेंज फील हो या समझने में कि इसको बोलना कैसे है, you can go into Google, you can write that word down, and you can just press. There is a speaker, speaker जैसा बना होता है. You can just press it again and again and again, and it will say it for you. So pronunciation, मुझे वहीं से पहली बार पता चला था कि pronounce होता है, PRONOUNCE is pronounce, but PRONOUNCIATION is pronunciation. It is not pronunciation. So okay, so now dropping this topic entirely up, coming back to the topic, stage fear. So मुझे recently मेरे students ने बोला that ma'am, stage fear is one major issue that we are facing in our lives. We go all prepared, we have all the data, सब कुछ याद है, सब आता है, क्या बोलना है ये भी पता है, English भी अच्छी है, yes, but still the moment we climb up on the stage, the moment we see that mic, and the moment we see all that public sitting in front of us, it could be 50 people, 100 people, 200, 1,000, it could be a number of people. The moment we see all this, ऐसा लगता है कि दुनिया बिखर सी गई है थोड़ी सी देर के लिए. What needs to be done? जो भी याद करा है, जो भी सीखा है, समझा है, खुद को सिखाया है, वो सब ऐसा लगता है कि मैम भूल गए हैं. As if बहुत एंजाइटी. One of my student actually came to me the other day, told me, मैम पता नहीं क्या हो जाता है, स्टेज पे आता हूँ ऐसे ऐसे सुनने लग जाता है. I am sorry, but this is actually something to laugh upon. मतलब genuinely. Why now? Because I have learned out of it. Okay, and I'm here to share कि तुम भी कुछ सालों में कैसे इस चीज पे हंसोगे ही. बिकॉज वो होता है ना कि यार उस टाइम पे कितने स्टूपिड थे, थोड़ा सा गिर गए, चोट लग गई,
बट आज उस इंसिडेंट पे सिर्फ हंसी आ रही है. इट्स द सेम थिंग वी विल बी टॉकिंग ओवर हियर. आई विल टेल यू हाउ. सो सबसे पहले हम रीजंस की बात करेंगे and then I will try to cover up the solution, or otherwise we'll go for the solution in next video if this goes too long. Okay, we'll keep it very simple and frank. It's you and me, we are talking, it's not me just talking. Okay, so stage fear क्यों होता है? सबसे पहले आपने पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर कर लिया, हिंदी में प्रिपेयर कर लिया, फाइन, आई एम फाइन विद इट. ओके, यू प्रिपेयर्ड इट ऑल, यू लर्नड इट ऑल, गुड टू गो. डे ऑफ द स्पीच, डे व्हेन यू हैव टू स्पीक, आज बोलने वाला दिन आ चुका है, सुंदर घड़ी आ गई है. And now you are walking towards the stage. पूरी ऑडियंस बैठी है, आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, आप स्टेज पे चढ़े, बिंगो, you have the mic in front of you and you started forgetting कि यार स्टार्ट कहां से करना था, मैं तो यही भूल गया, shit, I forgot, entirely forgot. So now अब यहां पर क्या हो रहा है? It is not your fault, to be honest. The fault is your brains. कैसे? आपका ब्रेन डिजाइंड है, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई हैव लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड, आई डोंट नो व्हाट साइंस सेज, मे बी यस, मे बी ही अग्रीज विथ मी, इट अग्रीज विथ मी, आई डोंट नो. सो आपका जो ब्रेन है, इट इज डिजाइंड टू फील वन इमोशन एट अ टाइम. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, आंसर इट टू योरसेल्फ, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एज वेल. कभी ऐसा हार्डली देखा है क्या अपनी लाइफ में, कभी रेयरली, कि अच्छा और बुरा साथ में लग रहा है? आई मीन, इज इट इवन पॉसिबल कि रोना भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है? बहुत रेयर टाइम्स में कभी, और एक या दो लोगों को, आई गेस आउट ऑफ द ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही होगी, राइट? सो बहुत कम ऐसा होता है कि आपका जो दिमाग है वो दो इमोशंस साथ में फील कर रहा है. इट इज फीलिंग हैप्पी, इट इज फीलिंग सैड, इट इज फीलिंग स्कैर्ड, इट इज फीलिंग एक्साइटेड. इट डजंट हैपन, इट बेयरली हैपेंस. इट इज डिजाइन्ड इन अ वे कि आप एक टाइम पे एक ही इमोशन फील कर सकते हो. अब जब आपने प्रिपरेशंस करी हैं, when you are preparing for the speech, for an interview, anything, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, उसके लिए आप एक रूम में बैठे हो, या एक क्लासरूम में हो, या अपने घर पे हो, हॉल में हो, anywhere where you barely have any people. Okay, mind me, हार्डली आपके आसपास कोई लोग हैं. आपने उस जगह बैठ के पेपर, कॉपी, पेन, बुक, मे बी फोन, इन सब चीजों के थ्रू आपने प्रिपेयर किया है. you've learned everything you've learned. Okay, बट नाउ माई क्वेश्चन इज, आपको सच में लगता है कि खाली रूम में बैठ के प्रिपेयर करना और सीधे उस दिन पे ऑडियंस को फेस करना जब आपको स्पीच देनी है, आप कर पाओगे? आई मीन, आई जस्ट वांट टू नो, गिव मी एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. बिकॉज आपके ब्रेन को आपने क्या फीड करा है इतने दिनों में? ऑल यू हैव फेड योर ब्रेन इज, ओके, वी आर इन अ रूम, देयर इज नोबडी, वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर स्पीकिंग. आपने सिर्फ उसको बोलने की प्रैक्टिस करवाई है, आपने उसको उस फीलिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाई जो स्टेज पे आने वाली है. एंड दैट इज वाई जब आपके ब्रेन ने सबसे पहले स्टेज देखा, लोग देखे, वो भी इतने सारे, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट कमिंग फ्रॉम योर ब्रेन इज, ओ माई गॉड, let's back off, we are not prepared for this, I am not prepared for this, which is very genuine. And that is why मैं हमेशा मेरी हर ऑडियंस, मेरे हर बच्चे को, as in my student, I tell everybody, mirror practice is the one stop solution. If I'm going to make 100 videos on YouTube, आप हर वीडियो में एक ना एक बार मिरर प्रैक्टिस का जिक्र जरूर सुनोगे. I have a reason to it, because आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जैसी भी हूं, the 110% credit I give is to mirror practice. Because let's get back to the point, let's go into the details. आपने खुद को बोलने की प्रैक्टिस करवाई, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवाई, इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई, ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई, मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस करवाई. क्या आपने आपके ब्रेन को भीड़ की प्रैक्टिस करवाई? क्या आपने आपके ब्रेन को स्टेज पे खड़े होके देखने की प्रैक्टिस करवाई? हाउ इट फील्स, आई मीन, यू स्टैंडिंग अ लिटिल बिट अप देयर एंड देन द ऑडियंस सिटिंग, सब नीचे हैं. क्या आपने कभी आपके ब्रेन को इस चीज की प्रैक्टिस करवाई कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं तो कैसा लगेगा? हैव यू एवर डिड दैट? नो. द आंसर कम्स नो. दिस इज द प्रॉब्लम. यही है मेन प्रॉब्लम. अब क्या होता है ना कि आपने हर चीज अच्छी प्रिपेयर कर ली, बट वहां जाके आपके ब्रेन ने उस इमोशन को डोमिनेट करवा दिया. दैट, लिसन टू मी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग एंजाइटी, shaky,
nervousness, डर, अंडर कॉन्फिडेंट एंड इंफीरियर, एंड और जो भी पॉसिबल संभावनाएं हैं इस चीज की, जो भी पॉसिबल इश्यूज हैं, वो सब आपको होने लग जाएंगे. आई हैव लिटरली सीन पीपल. I was in a class the other day. I had a word with the student. I asked her something. We were talking about career actually, and she got up like this. Oh my god, what am I going to do? And her hands were like this shaky. I asked her to relax, relax, it's okay. And we were just what? I guess 20 people in the room. So, ये प्रॉब्लम है. स्टेज फेयर करके कोई चीज मेरी नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती. प्रॉब्लम ये है कि हम सही से हमारे दिमाग को फीड ही नहीं कर रहे हैं व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी डन. And that is why when it comes to mirror practice, at least you are seeing yourself in the mirror, if not anybody else. और इसीलिए मैं मिरर प्रैक्टिस हमेशा मेंशन करती हूँ. कम से कम आप खुद को तो देख पा रहे हो. एटलीस्ट आप तो हैबिचुअल हो खुद को देखने के लिए. बट अब आप बोलोगे कि मैम यार ये तो क्या बात हो गई, स्टेज फेयर है तो वहां तो लोग देख रहे हैं, कौन सा हमें खुद को देखना है. वी डोंट हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अस. बट माई पॉइंट इज, जब आप मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप खुद को 10 बार देख रहे हो, सो नाउ योर ब्रेन नोज कि आपको जनता कैसे देख रही होगी. You know an expression, your brain knows an expression, your brain knows a feeling, your brain knows कि आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे लग रहे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही होगी, आपकी आईज कैसी लग रही होंगी, आपके लिप्स कैसे लग रहे होंगे, आपकी आवाज कैसी लग रही होगी. एटलीस्ट योर ब्रेन नोज. और हमको यहाँ पर क्या पब्लिक को दिखाना है? इज दैट व्हाट कम्स व्हेन इट कम्स टू स्टेज फेयर? नो. व्हाट इज द मेन पॉइंट? हमको खुद को जस्टिफाई करना है. दिस इज द ओनली थिंग. The moment we do this, we win. Simple as that. और अब ये कैसे ठीक होगा? So सबसे पहले I told you mirror practice. That is the most important thing. Mirror practice में ही, और otherwise you can go for video recordings as well. Maybe you can, likewise I am doing, you can put up a camera in front of you, you can record yourself and you can rewatch yourself. You can record yourself, you can rewatch yourself. Because हमको हमारे दिमाग को हर चीज से familiar करवाना बहुत जरूरी है. सिर्फ उस कंडीशन पे वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ब्रेन टू अस us good results, actually efficient results, और अदरवाइज यू विल फेल, यू विल कीप ऑन फेलिंग. मैं देखती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पता है, उनका स्टेज फेयर का इशू जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाता. एंड आई हैव अ रीजन टू इट. आई ऑलवेज इवन टेल देम दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस बाबा. इफ यू नॉट डूइंग दैट, आई मीन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? दिस इज लाइक स्विमिंग. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल. Some things in your life, they're like swimming. You can read a book on swimming, you can watch thousands of videos on swimming, you can see the water, bahar se khade, dur se khade hoke pani acha lag raha hai, but unless you get into the water, you won't learn swimming. It is that simple. So let's come back to the point. Stage fear. So I can still give you a bit of tactics. See, step 1 is always going to be step 1, which holds the 90% of work. अब जब तक 90% ऑफ वर्क नहीं है, ये आगे के जो 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगी, विच इज द 10% ऑफ वर्क, ये उतने यूजफुल नहीं होंगे. सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज मिरर प्रैक्टिस. इफ यू हैव डन दैट गुड इनफ, अब आप इसमें क्या कर सकते हो? नाउ व्हेन यू आर अप ऑन अ स्टेज, आई ऑलवेज डू दिस. अभी भी बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, टेक अ डीप ब्रेथ, exhale it out, relax. So first of all, calm down your nervous system. It is having a rush. It is seeing so many people. See, when you're going up on a stage and when you have to speak, there's going to be a lot of people, a lot of management, a lot of chaos basically for your brain, we can say. इतने सारे लोग, इतना सारा stage, all this, decoration, mic, कोई बोल रहा है, कोई आ रहा है, कोई inform कर रहा है, back end पे 50 चीजें चल रही हैं. So your brain is not used to all this. Okay? And that is why the feelings, the fear, it all can dominate you up. Take a deep breath, exhale it out, relax. इन सारी चीजों को म्यूट कर देंगे हम फर्स्ट प्लेस पे. And the second most important thing, now when you start speaking, we took a deep breath, we settled it down, हम relax हो गए, ये सारी चीजें थोड़ा सा avoid करने की कोशिश करी, and हम जीत भी गए, we avoided it all. And now look at a point. For example, because I have a camera in front of me, so I have to look maybe into the camera or somewhere near the camera. But when you have, let's say, 100 people sitting in front of you, what will you do? Simple. एक spot create करो
maybe one face in the audience and start watching him or her. It's fine, it's totally fine. कोई difference नहीं पता चलता. It's totally cool. Okay? Second thing you can do is maybe you can create a spot. So let's say the camera is over here, but then I am watching a wall in front of me or maybe a tree in front of me. Keep watching that. हमको वैसी कोई भी चीज स्टेज पे नहीं करनी है जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो या हमारा ब्रेन उसको सेकंड थॉट्स मिले दैट ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन, ही इज लुकिंग एट मी दैट वे, शी इज लुकिंग एट मी दैट वे, दीज टू आर टॉकिंग, दोस टू आर लाफिंग. ऐसा कुछ भी दिमाग को फीड नहीं करना है. अदरवाइज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड फॉर सच थिंग्स. वो एक सेकेंड के अंदर डिमोटिवेट हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. स्टिल नाउ इवन व्हेन आई एम टॉकिंग, I have people standing in front of my camera, the other side. I am not looking at them. They are trying to tell me things, but I am not looking at them. Simple. I need to know कि मुझे मेरे brain को highly focused रखना है when I'm doing something. Otherwise, I cannot expect 100% efficient result. Simple as that. So this was all about for today. Stage fear. This is, I feel that this is just part 1. We can talk in more detail. If you want a part 2 of stage fear, do let me know in the comment section. If you want me to jump to another topic, you can let me know that as well. We are good to go. And I will be starting a complete series very soon on confidence. Simple, just confidence. How to get confidence in your daily routine. Daily की चीजें जो भी हैं उसमें कॉन्फिडेंट कैसे फील करना है, वहां पर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे भरना है. सिंपल एज दैट. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल. So stay tuned till then. Thank you so much. I hope you all liked it. Whatever the feedback is, do let me know in the comment section. And if you are a new one over here, go watch my previous video as well. Do a like, subscribe, and और क्या क्या करते हैं YouTube में, share and maybe share it with your, definitely please share it with your people, especially children around you, because this helps them a lot. आज जो मुझे सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो 25 साल के ऊपर के लोग हैं. I mean, they are students to me. In age, definitely they are elder to me, but वो मेरे students हैं, क्योंकि उन्हें शायद सही टाइम पे ये चीजों इनका गाइडेंस नहीं मिला. So I have a humble request from you. भले से आप अगर ना भी देखो आगे मुझे चलेगा, बट अपने क्लोज वंस जो भी हैं, स्पेशली द चिल्ड्रन इन योर फैमिली, उनको प्लीज जरूर दिखाना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि शायद मे बी लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बड़े चल के जनरेशन is getting introvert. They don't know what to do, what needs to be done, stage fear, confidence, low esteem, etc. All right, I'll see you in the next week. Stay tuned.